The following is a class on Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 8, Text number 25, given by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, recorded on 17 April 1973 in Los Angeles. Very, very interesting verse that before calamities, danger, that is very good if such danger and calamities remind me of Krishna. That is very good. Tattenu kampa susumiksamana bunyana ivatma kritang vipakam. A devotee, how he receives dangerous position, danger must be there. Danger because this place, this material world is full of dangers. These foolish persons, they do not know that. They are trying to avoid the dangers. That is struggle for existence. Everyone is trying to become happy and avoid danger. This is the material business. Attantika sukham. Attantik sukh, ultimate happiness. A man is working and thinking, let me work now very hard and let me have some bank balance, so when I shall get old, I shall enjoy life without any working. That is the inner intention of everyone. Nobody wants to work. As soon as he gets some money, he wants to retire from work and to become happy. But that is not possible. You cannot be happy in that way. Here it is said, apunar bhavadarsanam. The real danger is, she is picking up apunar. Apunar means, a means not. And punarbhava means repetition of birth and death. The real danger is repetition of birth and death. That has to be stopped. And not this so-called danger. This is all, the material world is full of dangers. Padang jati vipadang. Just like if you are on the ocean. If you are on the ocean, you might have very strong ship, very safe ship. But that is not safety. Because you are on the sea, at any time there can be dangers. Perhaps you remember from your country, there was, what is that, Titanic? Everything was safe, but on the first voyage it was drowned. And all important men of your country, they lost their life. So danger there must be, because you are in a dangerous position. This material world itself is dangerous position. So our business is, the danger must be there. Our business should be how to cross over the sea as soon as possible. So long you are on the sea, you are on the dangerous position, however strong your ship may be. That's a fact.
See, you should not be disturbed by the sea waves. Just try to cross over the sea, go to the other side. That is your business. Similarly, so long we are in this material world, there must be dangerous calamities, because this is the place of calamity. So our business is, even within these calamities, dangerous, how we develop our Krishna consciousness, and after giving up this body, we go back to home, back to Krishna. That should be our business. We should not be disturbed by the so-called calamities. They are not so-called, they are factual. So, this question was there by Arjuna to Krishna, that whatever you are speaking, it is all right, that I am not this body, I am soul. Everyone is not this body, he is soul. So on the annihilation of this body, stop there. On the annihilation of the body, the soul will exist. But when I see my son is dying, or my grandfather is dying, I am killing, how can I solace me that my grandfather is not dying, my son is not dying? Simply it is changing, because I am accustomed to think like that. So there must be grief. So Krishna replied, yes, that's a fact. So that you must have to tolerate. That's all. There is no other remedy. Tang titikasa bharat. Krishna never said that these are not facts. What Arjuna explained, that I know that when my son is dying, my son is changing the body, or my grandfather is dying, changing the body. I know this. But still, because I am affectionate on the skin, so I must suffer. The Krishna replied, yes, the suffering is there, because you are also on the bodily concept of life. So suffering must be there. So there is no other remedy than to tolerate. There is no other remedy. Matra sparshastu kontiya sitosna sukhadukkada. Just like in your country, it is very chilly in the morning to take bath, a little difficult task. But does it mean that those who are devotees, they will stop taking bath? No. Even it is chilly, cold, one must take bath. The duty must be done. The duty must be done. Even it is little suffering. That is called tapasya. Tapasya means we must prolong or proceed with our Krishna consciousness, business, in spite of all dangerous and calamitous condition of this world. This is called tapasya. Tapasya means voluntarily accepting the difficulties of life. Sometimes tapasya, in the system of tapasya, in hot season, summer, and scorching heat of the sun, still they ignite some fire all round and sit down in the midst and meditate. There are some process of tapasya like that. In chilly cold, one goes into the water up to the neck and meditates. These things are prescribed in tapasya, but Lord Chaitanya Mahaprabhu does not give you such prescription. He gives you very nice program. Chant, dance and take prasadam. Still we are unwilling. We cannot accept this tapasya. You see, we are so fallen. Susukham kartum abhyam. This is a kind of tapasya
which is very easy to do and it is very pleasant, still we are not agreeable. We shall rot in the street, lie down anywhere and everywhere, and still I shall drink and have sex and lie down. So what can be done? We are giving good facilities. Come here, chant, dance, and live very peacefully and take Krishna Prasad, be happy, but people will not accept. That is called misfortune. Chaitanya Mahaprabhu therefore said, Etadrisi tava kripa bhagavan mamapi duddaiva idrisamiha janinanuragam. Chaitanya Mahaprabhu says, Nam namakari bahuda nija sattva shakti. In the transcendental holy name of God, Krishna, there is all potencies. As Krishna has got unlimited potencies, similarly, in the name, holy name of Krishna, there is unlimited potency. So, Nam Namakari Bodha, and there are many names of Krishna. Krishna has got thousands and thousands of names. Krishna name is the chief name. Nam Namakari Bahuda Nija Sarva Shakti Tatrarpita Niyamita Smaranina Kala. And there is no hard and fast rule that you have to chant in this time or that time. No, any time. Any time you can take. And the name is identical with Krishna. On this logic, the name, holy name of Krishna is Krishna. Is no other than Krishna. Don't think that Krishna is living in Goloka Vrindavan and the name is different. Just like in material world we have got this conception. The name is different from the fact. But in absolute world, there is no such difference. That is called absolute. The name is as potential as Krishna is potential. So, you have got this tongue, you can chant Krishna, Hare Krishna, immediately you become directly in touch with Krishna. Immediately. Because the name Krishna and Krishna person is not different, identical. So even if you think that Krishna is far, far away, Krishna is not far, far away. Krishna is within you. He's not far away. He's far away, at the same time nearest. So, even if you think that Krishna is far, far, his name is there. You chant Hare Krishna, Krishna becomes immediately available. Anyamitas. And for making Krishna available in this shortcut way, there is no hard and fast rule. You can chant any time. Immediately you get Krishna. Just see the mercy of Krishna. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu says that Etadrisi tava kripa. My dear Lord, you have given me so nice facilities to contact you, but duddaiva, I am so unfortunate. I have no attachment for this thing. I have no attachment. I have got so many attachments for other things, but I have no attachment for chanting Hare Krishna. This is my misfortune. Krishna has given so much facilities that he is present before you by transcendental vibration in his name, and the name has got all the potencies of Krishna. So if you remain in contact with the name, you get all the benefit of Krishna's benediction, but still I am not inclined to chant Hare Krishna mantra. हरे कृष्णा। सो प्रभुपाद बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, राइट, दैट इज व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट दैट वी हियर फ्रॉम श्रील प्रभुपाद टाइम टू टाइम
अभी आप सबसे सुनेंगे, क्या आपको अंडरस्टैंडिंग बनी? हु वुड लाइक टू शेयर फर्स्ट? शशि प्रभु जी कुछ शेयर करना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। ये हरे प्रभु जी कृष्ण। काफी स्ट्रॉन्ग लेक्चर था। कृष्णा के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। शुरुआत क्लैमिटी से कर रहे हैं कि यार कोई ऐसी क्लैमिटी भी लाइफ में होती है जिससे हम कृष्णा को याद करते हैं या कृष्णा के पास जाते हैं, तो वो लाइफ के लिए वो भी गुड है। नॉर्मल लाइफ के बारे में बताते हैं कि मटेरियल लाइफ जो है फुल ऑफ डेंजर है। कई सारे डेंजर्स हैं इसमें, तो अगर हमें उससे बाहर आना है, अपना माइंडसेट चेंज करना है, तो कृष्णा इज द ओनली थिंग। कृष्णा का सहारा हम ले सकते हैं, नाम चैंट कर सकते हैं। और कृष्णा नेम और कृष्णा में कोई डिफरेंस नहीं है। तो कई बार हमें लगता है कि भगवान बहुत दूर हैं, तो कैसे हम भगवान की तपस्या कर सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं। तो वो यही यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि कृष्णा नेम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। तो इफ यू आर टेकिंग नेम, आप स्मरण कर रहे हैं बार बार कृष्णा का, तो वो भी आप कृष्णा के आपको पास ही ले जा रहे हैं। इसके सिवा बाकी बता रहे हैं कि शिप का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे कि शिप है, चाहे कितना भी सेफ हो आप बना लो, लेकिन वो कभी भी पूरा सेफ नहीं है। आप जब समुद्र में जाते हैं तो जो वहाँ पे क्लैमिटी आती है, तूफान आता है, तो आप उसे बचा नहीं सकते। तो आपका लक्ष्य यही है वहां पर भी कि आपको एक किनारे से दूसरे किनारे पे पहुंचना है। इसी तरह गीता का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि चाहे हम चाहे हम कितना भी गीता पढ़ लेते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हम अपने बॉडी कॉन्शियस लेवल से भी कनेक्टेड है। तो अगर लाइक किसी की डेथ होती है फैमिली में, तो डेफिनेटली हमें ग्रीफ होता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन आपका माइंडसेट अगर होता है, आप धीरे धीरे उससे निकल सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वी नो वी ऑल आर सोल्स। अगर एक सोल एक बॉडी छोड़ती है, तो उसके बाद वो एक दूसरी बॉडी में जाती है। ऑल्दो ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जब प्रैक्टिकली होता है तो बहुत टफ है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कनेक्टेड है अपने बॉडी कॉन्शियसनेस से। तो उसका एक ही चीज है कि हम कृष्णा का नाम लें ज्यादा से ज्यादा। जैसे कि एक तपस्या होती है, तपस्या में भी अ, तपस्या के बारे में बता रहे हैं कि कृष्णा के नेम में अनलिमिटेड पोटेंशियल है। चाहे आप जो है वो भी एक काइंड ऑफ तपस्या ही है। जरूरी नहीं कि आप किसी अलग तरीके की तपस्या कर रहे हैं, आप पहाड़ों में जा रहे हैं, माउंटेन्स में जाके कर रहे हैं। आप जिस कृष्णा का नाम ले सकते हैं, यहाँ पे भगवत गीता को कोट कर रहे हैं कि आप हर समय मुझे स्मरण कीजिए और मेरा नाम लीजिए। वो ही सबसे अच्छा सहारा है, जो हर समय मेरा नाम लेता है। जैसे कि वो मनमना भव मद भक्ति मध्या जीवन, मन्मना भव मद भक्ति मध्या जीवन नमस्कुरु मामे वैश्य रखते हैं। आत्मा नाम मत परायणा भी है श्लोक, कि हमेशा मेरा नाम लो, मेरा स्मरण करो, जो भी करते हो उसे मुझे डेडिकेट करो। और ऐसे ही जो भक्त होते हैं वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस श्लोक में भी हमें पता चलता है कि हमें हर समय कृष्णा का नाम लेके ही हम अल्टीमेटली इस समुंदर रूपी वर्ल्ड को पार कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। वेरी नाइस। थैंक यू प्रभु जी। सो आपने जैसे शिप का एग्जांपल लिया, उससे हम और समझ सकते हैं कि प्रभुपाद ने शुरू किया था ये लेक्चर, एवरीबडी इज ट्राइंग टू अवॉइड द डेंजर्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, राइट? तो कल मैं अपने बच्चों को फॉर एग्जांपल यू नो यहाँ लेके गया, बगल में हमारे यहाँ पे एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, राइट? तो नेशनल पार्क में हमने बर्ड्स देखे। तो मैं पूछ रहा था बर्ड्स के बारे में, तो उन्होंने बताया मुझे कि दीज बर्ड्स एक्चुअली माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया एवरी ईयर, राइट? तो एवरी ईयर वो बर्ड्स जो हैं साइबेरिया से यहाँ आते हैं नेशनल पार्क के अंदर, और फिर जब वहाँ पे सर्दी कम हो जाती है फिर वापस चले जाते हैं, राइट? यहाँ गर्मी बढ़ती है और वहाँ पे भी रिलेटिवली गर्मी बढ़ती है। वैसे तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि वहाँ पे नवंबर से लेकर फरवरी तक यहाँ रहते हैं। तो दे ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, किस लिए? टू अवॉइड द डेंजर, राइट, ऑफ हार्श विंटर्स। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी है ये। लेकिन होता क्या है, जब वो यहाँ आते हैं, उन्होंने एक और चीज़ बताई मुझे, तो अपना शांति से रहते हैं, बच्चे बच्चे खूब पैदा करते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते हैं हर तरह की। काँव 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 पूरी आवाज़ आ रही थी, एकदम बढ़िया माहौल बना हुआ था, राइट? तो उसके बाद फिर वो वापस जाते हैं, राइट? तो जैसे ही हमें एक सिचुएशन मिलती है कंफर्टेबल, हम लोग क्या करते हैं, हमारा भी यही है कि हम पहले डेंजर अवॉइड करेंगे और इस भौतिक जगत के अंदर जो है बड़े बिजी हो जाते हैं इंद्रिय तृप्ति के अंदर,
राइट। जैसे ही हमें कंफर्टेबल सिचुएशन मिलेगी, फिर जैसे ही डेंजर आएगा हम वापस भागने लगेंगे अपनी अटैचमेंट्स की वजह से। तो क्या हम केवल उन बर्ड्स की तरह ही जी रहे हैं लाइफ को? राइट, हमें ये सोचना चाहिए, आर वी जस्ट लिविंग लाइक दोस बर्ड्स, कि डेंजर आया तो भागने लगे, जैसी कंफर्टेबल सिचुएशन आई तो हम जो है एकदम से इंद्रिय तृप्ति करने लगे। भोग त्याग, भोग त्याग, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक साइकिल है। पहले व्यक्ति जो है त्याग करता है कुछ, फिर उससे कुछ मिलता है त्याग से, फिर उसका भोग करता है, फिर त्याग करता है, फिर भोग करता है। तो ये क्या है, पशु योनि की क्या है, सिचुएशन है। क्या हमारी भी ऐसी सिचुएशन है? तो प्रभुपाद बोल रहे हैं मेन बिजनेस इज टू, जो उस शिप जो है, शिप में जो बैठे हैं हम, उसको कंफर्टेबल बनाना नहीं है हमारा मेन बिजनेस, क्योंकि उसके अंदर तो सफरिंग्स रहेंगी, राइट। उसके अंदर तो प्रताड़नाएं मिलेंगी, लेकिन हमारा मेन बिजनेस है उस शिप को यूज करके दूसरे छोर पे पहुंचना, जल्दी से जल्दी। आ पुनर्भव दर्शनम, तो ये कुंती महारानी की प्रेयर है भगवान श्री कृष्ण को, कि भवतो दर्शन यत् स्यात्, कि आपका दर्शन जो है, बेशक से मेरे ऊपर कैलेमिटीज आती रहें, राइट, बार बार मेरे को जो है सफरिंग मिलती रहे जीवन में, लेकिन आप मेरे साथ रहें, क्योंकि आप जब साथ होते हैं तो आपके दर्शन से भव के दर्शन जो है दोबारा होने बंद हो जाते हैं, राइट। सो बहुत स्वीट प्रेयर एक्चुअली। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स, टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती। आप में से भी कुछ लोग पढ़ते हैं बुक्स, तो आप ये बुक लेके पढ़ सकते हैं, बहुत ही सुंदर, वन ऑफ माय यू नो ऐसी बुक जिसने मेरे को सबसे ज़्यादा रियलाइजेशन दी है जीवन में, इट इज़ टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती। सो उन्हीं की एक ये श्लोक है, उसी बुक का श्लोक है, जो महारानी कुंती ने प्रेयर्स की थी भगवान श्री कृष्ण को, कि आपके जब दर्शन होते हैं भगवान, तो मेरे को जो है कोई दिक्कत नहीं है, कैलामिटीज आए भी सही, क्योंकि आपके दर्शन से भव दर्शन का जो चक्कर है वो बंद हो जाता है। सो और सुनेंगे, और कौन भक्त शेयर करना चाहते हैं आज? एनी अदर डिवोटी? मंगला प्रभु जी बैठे हुए हैं, डियर मंगला जी, कुछ कहना चाहेंगे? बेसिकली ये ग्रुप डिस्कशन का एक प्लेटफॉर्म है आज का, सो इट्स नॉट ओनली मी स्पीकिंग, आई वुड लाइक एवरीबडी टू पार्टिसिपेट। शिव मेहता प्रभु जी, क्या अंडरस्टैंडिंग मनी? हरे कृष्णा प्रभु जी, 2 मिनट में करता हूँ, जरा कहीं पहुंच रहा हूँ, विद इन 2 मिनट्स। ओके, नो प्रॉब्लम प्रभु जी, नो प्रॉब्लम। शिप्रा चौधरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हम्म। यस माता जी। अभी तक यही समझा कि जैसे कि शिप में प्रभुपाद जी थे, या अगर हम भी होते हैं, तो बहुत सारे हार्श कैलेमिटीज आते हैं, बहुत सफरिंग्स आती हैं, बट व्हेन यू आर इनटू द कॉन्शियस ऑफ कृष्णा जी, और कृष्णा जी को याद कर रहे हैं, तो जैसे अभी आपने कुंती जी का एग्जांपल दिया कि वो सफरिंग सफरिंग नहीं दिखती है, एंड देन द लाइफ इज वेरी स्मूथ। और जब आप उनके चरणों में हैं, जब आप उनकी यादों में हैं, और पूरा ध्यान कृष्णा पे है, तो जितने भी हार्श कैलेमिटीज होंगे, वो सब कुछ सामने आपके दिखेगा नहीं, वो सफरिंग्स नहीं दिखेंगी, एंड just the love of Krishna is there around you, every time is there around you. तो वही मेन पर्पस होना चाहिए, वही मेन तुम्हारा एक कॉन्शियस लेवल होना चाहिए, दैट्स इट। यस। तो कृष्णा की यादों में होने का क्या एक्चुअली तरीका है, उसके ऊपर प्रभुपाद जी बोल रहे थे। यस, चैंटिंग का प्रोसेस जो प्रभुपाद जी ने लिया, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, कि भगवान ने सारा का सारा जो शक्ति है वो नाम के अंदर डाल दिया है, राइट। सो दिस इज द प्रोसेस वी हैव टू एक्चुअली फॉलो, राइट। तो प्रभुपाद जैसे एग्जांपल भी दे रहे हैं कि डिफिकल्टी है, फॉर एग्जांपल सुबह उठ के नहाना है हमें, राइट, ठंडा ठंडा पानी है, अब कैसे नहाएं जी? आजकल तो चलो गीजर आ गए हैं सभी के घर में, राइट। तो जब हम हॉस्टल में थे 2007-8 बस में, यही नहीं तो होता हम, प्रभु जी मुझसे। हाँ जी, बस यही नहीं काम होता मुझसे अभी। तो ये तपस्या माता जी करनी है। देखिए तपस्या हम तो, या तो तपस्या हम भौतिक जगत के अंदर मटेरियल अचीवमेंट्स को प्राप्त करने के लिए करेंगे, या स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स को प्राप्त करने के लिए, कोई ना कोई तपस्या हम कर रहे होंगे। आप अपने जीवन में देखिए, जहान को स्कूल में भेजना होता है जब आपने, तो सुबह उठना पड़ता है आपको, राइट, क्योंकि आपको पता है बच्चे को स्कूल भेजना है, नहीं तो उसका करियर खराब होगा, उसके लिए आप उठते हैं, राइट। राइट। सो तपस्या है एक, राइट।
तो उसके साथ साथ तपस्या हमारी स्पिरिचुअल भी होनी चाहिए। तो प्रभुपाद उसी का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि चिल्ड वाटर से नहाना है, राइट, सुबह उठ के। चिल्ड वाटर से नहीं तो हम कम से कम बिस्तर छोड़ के खड़े होके बाथरूम जाके नहाना है जल्दी उठ के, तो वो तपस्या है, राइट। लेकिन वो तपस्या क्या है, हमें एक्चुअली मुक्त करेगी इस भवसागर से। अदरवाइज बाकी सारी तपस्या क्या है, हमें यहीं की यहीं रखती हैं, वो बनाए रखती है। साइबेरिया के पक्षी जो है उड़ के आ रहे हैं यहाँ पे, इतना उड़ रहे हैं बताओ, इतने हजारों किलोमीटर्स। आई वॉज रियली सरप्राइज्ड। पता तो मेरे को था ही, खैर ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, बट दे आर ट्रेवलिंग सो मच जस्ट फॉर 3 मंथ्स, देखिए आप, राइट। और उसके बाद वो वापस आने, इतनी तपस्या कर रहे हैं केवल इस शरीर को संभाल के रखने के लिए, कि इस शरीर को कुछ ना हो। तो असली जो हमारी तपस्या है, वो पिंजरे को संभाल के रखने के लिए नहीं होनी चाहिए, वो पिंजरे के अंदर जो तोता बैठा है उसको संभालने के लिए होनी चाहिए, राइट। पिंजरे को तो संभाल के रखना ही है एनीवेज, बट तोते को संभाल के रखना जो पिंजरे के अंदर है, उसकी केयर करना, उसके बारे में हम सोचते ही नहीं है, राइट। सो उसके लिए भी तपस्या करनी है हमने कुछ, राइट। सो बट यस, वेरी नाइसली से शेयर्ड शिप्रा माता जी, थैंक यू। कुछ और शेयर करना चाहती हैं आप? That's it. Thank you. सो फॉलो द प्रोसेस, एक्चुअली वी हैव टू फॉलो द प्रोसेस। ये सब जो प्रोग्राम्स हैं, यू नो, हियरिंग, चैंटिंग, इसमें बहुत अच्छे से हम जो है अपना एब्जॉर्प्शन के साथ, कॉन्टेम्पलेशन के साथ पार्टिसिपेट करें। अब हम सुनेंगे DR मंगला जी से। मंगला जी कैमरा खोल के आ गए हैं। प्रभु जी अनम्यूट कीजिए, यू आर ऑन म्यूट। यस प्रभु प्रभु जी। प्रभु जी, मैं तो यही समझ पाया हूँ कि इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन तो प्रभुपाद जी ने ये बतलाया कि भाई इसका तो इजी सॉल्यूशन तो है जी, चैंटिंग करनी है प्रभु जी, और दूसरा प्रसादम, डांसिंग, चैंटिंग एंड प्रसादम। अल्टीमेट सॉल्यूशन इसका यही है, इसको पार करने का, भवसागर को पार करने का तो यही सॉल्यूशन है। दिस इज द इजीएस्ट सॉल्यूशन ही हैज टोल्ड। यस। प्रभुपाद फर्दर ऐड कर रहे हैं इसमें कि अरे ये तपस्या, क्या तपस्या तुम सोच रहे हो कि बहुत बड़ी तपस्या नहीं है। कलयुग के अंदर तो बहुत इजी तपस्या दे दी गई है, तपस्या को भी बड़ा इजी कर दिया गया है। और यही चैतन्य महाप्रभु की कृपा भी है। इसीलिए बोला जाता है कि चैतन्य महाप्रभु जैसा कृपालु जो पर्सनैलिटी है, ना कभी आया था ना कभी आएंगे, राइट। ही इज द मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। क्यों? क्योंकि चैंटिंग, डांसिंग एंड प्रसादम। प्रसादम ईटिंग, राइट, ऑनरिंग, जैसे हमने कल डिस्कस किया, ऑनरिंग, ऑनर करते हैं हम प्रसाद को, राइट। सो बाय दीज थ्री वी कैन एक्चुअली गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड, राइट। इतना सिंपल बना दिया है, बताओ। प्रभुपाद कह रहे हैं तपस्या भी नहीं करनी, और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि देखिए हमारा ये एक क्या है, एक तरह से मिसफॉर्च्यून है, राइट, कि हम जो है इसको भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि हम भगवान के नाम पे नाचने गाने के लिए, प्रसाद पाने के लिए भी हम जो है संडे को 4 से 6 नहीं आ पा रहे। तो आप जो है इसको अपने जीवन में एक्चुअली हम बहुत इसको रिलेट करें, राइट। प्रभुपाद हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं, राइट। एंड हमें कैसे एक्चुअली इस प्रोग्राम को अपने जीवन में उतारना है। दिस इज सो सो इम्पोर्टेंट विच प्रभुपाद इज एक्चुअली। अदरवाइज क्या है, हम साइबेरिया के पक्षी की तरह, जैसे मैंने बताया ना, आ रहे हैं 3 महीने के लिए इंडिया, फिर उसके बाद वापस आ रहे हैं बच्चे बच्चे पैदा करके अपना, राइट। वो दिखा रहे थे, देखो इतने सारे छोटे बच्चे हैं, ये सब यहीं पैदा किए हैं इन्होंने, राइट। जैसे ही कंफर्टेबल माहौल आया, इंद्रिय तृप्ति शुरू हो गई, फिर उसके बाद वापस गए, फिर वहाँ पे तपस्या आ गई, साइबेरिया के अंदर जाके ठंड लगने लगी, फिर वापस इंडिया आ गए। तो इस शरीर के लिए कितना कर रहे हैं बताइए, राइट। सो थैंक यू DR मंगला प्रभु जी। और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं प्रभु जी, दैट्स ऑल। मैं तो ये आपको मायापुर जाने का आपका प्रोग्राम था क्या? आपने व्हाट हैज हैपेंड सर? आई विल डिस्कस इट प्रभु जी सेपरेटली, इंडिविजुअली विद यू। ओके सर। थैंक यू। सो अभी हम सुनेंगे किरण डंडोना माता जी से। किरण डंडोना माता जी, वुड यू लाइक टू शेयर एनीथिंग? अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं माता जी आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा शिव प्रभु जी। यस प्रभु जी, बताइए। सॉरी प्रभु जी, ऑन द वे था इसलिए बात नहीं कर सका। कृष्णा इज ऑलवेज ऑन सेंटर। और प्रभु ने
चल मर्सी और प्रोटेक्शन वो बहुत ही powerful हैं जिनसे वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, पोटेंशियल एज वेल एज मर्सी। मर्सी ऑलवेज पोटेंशियल थोड़ा प्रभु जी आवाज में डिस्टरबेंस है आपका, अगर आप कहीं एक बार रुके तो कॉल। चीज़ों से, इन सब ध्यान से, इन सब चीज़ों के करने से इतनी अच्छी एनर्जी और एंथुसिज्म मिल रहा है कि उसका कहीं कोई बयान नहीं है प्रभु जी। ये तो मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। तो कृष्णा इज ऑलवेज ऑन सेंटर। हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो प्रभु जी ट्रैवल कर रहे हैं कहीं, सो अच्छे से आवाज नहीं आ पा रही थी। आयुषी नरूला माता जी, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? आयुषी हरे नरूला कृष्णा माता प्रभु जी, धन्यवाद, हरे प्रणाम कृष्णा। सबको। मॉर्निंग प्रणाम सब भक्तों को। अ, मेरी तरफ से यही है, मैंने आज थोड़ा 7:13 पे ज्वाइन किया, बट आई गॉट द जिस्ट ऑफ श्री प्रभुपाद जी लेक्चर जो उनमें बता रहे थे। हम्म मेरे एक क्वेश्चन का आंसर हो गया इसमें। समटाइम्स आई यूज टू फील कि सिर्फ चैंटिंग करने से, क्योंकि हमारे कुछ लेक्चर्स में हमने सुना है कि गुरु के थ्रू ही तुम कृष्णा से कनेक्टेड होते हो। सो बट आज के लेक्चर ने ये सिखाया कि कृष्णा एंड हिज नेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एज सुन एज यू चैंट इवन वन वन नेम, सो यू फील कनेक्टेड टू कृष्णा। इट्स लाइक आपका फोन, आपने फोन लगा लिया कृष्णा को एंड यू जस्ट टॉकिंग इन इन होली नेम लैंग्वेज। सो मतलब इसको सुनने के बाद चैंटिंग विल बी मोर फीलिंग ब्लेस्ड और फीलिंग कनेक्टेड और फीलिंग फोन कनेक्टेड काइंड ऑफ activity also for my हम्म understanding. एंड ये जो बर्ड्स वाला एग्जांपल आपने दिया, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंस्पिरेशनल, दैट यस समटाइम्स हमारी लाइफ बस ऐसी चलती रहती है, बट जब हम ऐसे एग्जांपल सुनते हैं तो वी जस्ट रेट्रोस्पेक्ट, हाउ आर वी डूइंग, व्हाट आर वी डूइंग, एंड हमें किस लिए यहाँ पर भेजा गया है और हम कर क्या रहे हैं। So these kind of things come in mind. एंड ग्रीफ वाला एग्जाम्पल जो शशि प्रभु जी ने भी इलेबोरेट किया, वो मेरे लिए आज इलेबोरेटिव है। आज एक मेरी फैमिली में कुछ डेथ भी हुई है, सो बट मेरे लिए ऐसा है कि ये सेशन और कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहना इज is constant even in the tough times. So I can feel that today. These are the learnings, Prabhuji, for me today. वेरी नाइस माता जी। सो एक्चुअली माता जी ने जो लास्ट में पॉइंट शेयर किया, बीइंग कंसिस्टेंट इवन अमिड्स द डिफिकल्टीज, राइट? तो प्रभुपाद इसको टच कर रहे थे, समाव हमने अभी डिस्कस नहीं किया, तो ये लास्ट में जो पॉइंट बोला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि हमारे जीवन में ये सब चैलेंजेस आएंगे, शिप में झटके आएंगे, राइट? क्योंकि समुद्र की लहरें हैं, राइट? प्रभुपाद जब जा रहे थे अमेरिका तो उनको 3 हार्ट अटैक आए शिप के अंदर, बताइए। एंड वो हार्ट अटैक्स भी उनको रोक नहीं पाए, एक्चुअली डॉक्टर्स नहीं थे वहाँ पे, राइट? बट हमें भी आएंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी हमारी बनी रहे इस प्रोग्राम के अंदर, उससे हमें पता लगेगा कि हम सच में ट्रांसेंड कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, राइट? इस भौतिक शरीर को, जो उसके आने वाले कष्ट हैं उसको ट्रांसेंड कर पा रहे हैं, सच में हम स्पिरिचुअल कुछ कर रहे हैं, या केवल जो है बस प्रोग्राम ही चल रहा है जी, कोई और फंक्शन है, आज वो फंक्शन है, कल ये फंक्शन है, तो इस्कॉन की क्लास भी एक फंक्शन ही है, राइट? बट अगर हम सच में स्पिरिचुअल लेवल पे कर रहे हैं तो हम सच में शरीर के ऊपर जा पाएंगे। तो जैसे एग्जाम्पल दे रहे थे प्रभुपाद जी ग्रीफ का, राइट? तो भगवान ने कभी भगवत गीता में ये नहीं बोला कि डिफिकल्टी नहीं है अर्जुन, प्रभुपाद क्लियरली बता रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से, देखिए। भगवान ने ये नहीं बोला कि डिफिकल्टी नहीं आएंगी, तुम्हें जो दुख नहीं हो सकता, लेकिन दुख को टॉलरेट करना है, राइट? प्रभुपाद यूज कर रहे थे बार 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 टॉलरेटिंग, भगवान जो यूज कर रहे हैं, राइट? शीतोष्ण सुख दुखदा, राइट? टॉलरेट करते हुए हमें इस चीज़ को समझते हुए कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम ए सोल, इसको हमने टॉलरेट करते हुए आगे बढ़ना है, राइट? राइट पर्सपेक्टिव में, राइट? तो ऐसे हमें इमेच्योरली भी नहीं करना, जैसे कि भाई हम सोचे कि भाई अरे क्या हो गया, मर गया तो मर गया जी, क्या हो गया, आत्मा थी चली गई, राइट? हमें जो है दुख आएंगे, लेकिन हमें उन्हें टॉलरेट करना है राइट पर्सपेक्टिव के साथ। सो वेरी नाइस माता जी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने लिया, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी शेयर की। कीप इट अप। लास्ट हम आज सुनेंगे, अपने आप हाथ खड़ा कर सकते हैं आप, कोई डिवोटी कुछ शेयर करना चाह रहे हो? एनीबडी? अदरवाइज आई विल कॉल वन डिवोटी।
किरण माता जी कुछ शेयर करना चाहती हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। आज प्रभुपाद जी ने जो बताया कि हमको नाम से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। अगर हम एक बार कृष्ण का नाम लेते हैं तो भगवान हमारे सामने साक्षात रूप में खड़े हो जाते हैं। तो भगवान ने कितने सरल तरीके से हमको ये बताया है कि कुछ भी मेहनत करनी जरूरत नहीं है, किसी भी टाइम पे हम कर सकते हैं और बड़े आसान तरीके से, चाहे सोफे पे बैठो, चाहे कुर्सी पे बैठो, चाहे बाहर बैठो, चाहे मंदिर के आगे बैठो, कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं। तो इससे आसान तरीका तो हमारे पास और कोई हो ही नहीं सकता कि भगवान को हम प्रसन्न कर सकें। और भगवान प्रसन्न होंगे तो फिर वो अपनी कृपा हम पर बरसाएंगे और हमको अपनी भक्ति का दान देंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय जय जय, वेरी नाइस माता जी, आपने बहुत सुंदर शब्दों में, शॉर्ट एंड स्वीट, राइट, आपने एक्सप्लेन किया। एंड यू नो, दिस इज हाउ वी शुड एक्चुअली अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल, राइट। 10वीं फेल 12वीं पास करें, राइट। तो बहुत ही सरल कर दिया भगवान ने, 10वीं फेल को भी 12वीं पास करने का मौका दिया है, इवन PhD करने का मौका दिया है, इतना इजी कर दिया ये प्रोसेस, राइट। सो कलयुग के लिए स्पेशल ऑफर है, राइट। सो हम आज यहाँ स्टॉप करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद मॉर्निंग प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। कीप इट अप। हम हर संडेज जो है प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते हैं। वीक में हम 1 या 2 दिन गेस्ट लेक्चर्स करेंगे, जिसमें हम सीनियर डिवोटीज़ जो हैं उनको बुलाने का प्रयास करेंगे ताकि हम भक्तों से सुन पाएँ। उसके अलावा हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत का भी अध्ययन कर रहे हैं, रीडिंग करते हैं और उसके ऊपर ऐसी चर्चा करते हैं। सो आप सब जो है मॉर्निंग प्रोग्राम जो कि ब्रह्म मुहूर्त का समय है उसमें उठिए, मोड ऑफ गुडनेस का समय है, ये बहुत कंड्यूसिव है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, राइट। इसमें उठने का प्रयास कीजिए एंड इन प्लेटफॉर्म का फ़ायदा जो है उठाने का प्रयास कीजिए। थैंक यू सो मच। इसका यूट्यूब का रिकॉर्डिंग लिंक जो है, जो कृष्णा अनुशीलनम नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया उसके ऊपर भेज दिया जाएगा। सारी रिकॉर्डिंग्स उसी ग्रुप पे भेजी जाती हैं। अगर आप में से कोई व्यक्ति वहाँ नहीं है उस ग्रुप पे, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, सो दैट आप दिन में कभी भी दोबारा से इन रिकॉर्डिंग्स को सुनना चाहें तो आप उन रिकॉर्डिंग्स को सुन सकते हैं। Thank you very much. See you in the evening, 4 p.m. to 6 p.m. for the Bhagavad Gita certificate course. Hare Krishna. हरे कृष्ण।